Good morning, everyone. Good morning, dear all students. Welcome to your own learning channel, that is Parmar Academy. As you all know, during Corona pandemic, we came to know about the value of online classes. During this time period, we came to know that why this internet activities, online classes, learning from mobiles, learning from YouTube channel, why it is required. So, dear students, all concepts are well clarified on your own Parmar Academy. All subject means all major subject videos are available in which your concepts will be clarified to you in easier and interesting manner. So here I am here along with a new video which is on mathematics topic. Very interesting topic and one of the most important chapters topic is there. Today I am going to discuss. As we all know that mathematics is a major part, or we can say an important part of our life. In their day routine life we used to face problem, we used to do the calculation etc. आप लोग भी करते होंगे बेटा, student हो, of course you used to do lots of calculation because mathematics term is the most important part of our life. We can't imagine our atmosphere, we can't imagine our living without mathematics subject. Well, each and every subject is equally important, as well as mathematics is also. Like if you are a student, you always used to calculate your marks, means how many questions are attempted by you and how many marks you are about to get. Okay, similarly, if a lady is housewife, definitely he or she or person whosoever is there, everyone use mathematic term. Doesn't matter that person is educated or uneducated, each and every person utilize mathematic term. Like for example, if you are a shopkeeper, definitely purchasing and selling etc. all calculation are done in mathematic term. If you are a farmer, definitely all calculation is done in mathematic term, like while purchasing seeds, while doing any kind of activity in your field. Means every person required mathematics. Right now, not only teachers, students, a normal housewife, a normal person, a small kid also used to do the calculation, like when distribution of toffees are done among the family members, among the kids, they used to do the calculation that how many toffees should they get, and all these things. So definitely the main motive of this one conversation is that I want to let you know about the mathematics and to generate a little bit curiosity regarding it. So dear students, today we are going to start our 10th class topic. Well, this is not related to only 10th class. Well, you start learning this topic from 6th class onward. But later on, when you go to the senior classes, definitely the topic get elaborate in much more better way और अच्छे से उसको elaborate किया जाता है. So today we are going to talk about a topic, very important one, that is surface area and volume of solid figures. Well, you all are very much familiar regarding this one topic. You start learning this topic from junior classes onward. But the criteria means the way and the things which are taught to you that are very low level in the starting onward. But later on, when you passes to the junior classes, senior classes, definitely ये अब काफी बड़े level पे आ जाता है. So here in the 10th class, if we talk about 10th class, we need to talk about surface area and volume of the solid figure. In the starting onward, फर्स्ट ऑफ ऑल यू केम टू नो अबाउट डिफरेंट टाइप्स ऑफ फिगर. पहले आप उनके बारे में जानते हो कि क्या क्या फिगर है, and you able to correlate those figure in your routine life, in your daily usage, as well as in your atmosphere in the nearby area. Right now, जैसे मान लीजिए मैं अभी एक रूम में हूँ, I am teaching you all, okay, and maybe you are just watching this video maybe on mobile, maybe on laptop, tab, etc. तो जो आपके हाथ में है डिवाइस, that is also in a specific shape or figure. Okay, so you can correlate these things and this topic with your normal routine life. So very interesting topic, and let me tell you beta, maximum marks you can gain from this topic. और बहुत easy topic है, nothing to be worry about. कुछ बच्चे बोलते हैं मैम it's really very hard. I don't think so. आपको hard क्यों लगता है? Now, today I will try to solve that problem. And when you will watch this video, try to find out where is the problem. Why are you facing problem to solve this sum? Well, I think this is the most interesting topics among your mathematics chapters. Okay, so today we are going to start this one. So first of all, dear, what can you see on the screen? Well, two sets are there, set A and set
B. Okay, I hope this is visible to all of you. Okay, so set A. In the set A, some shapes and figures are being drawn here, and in another set B. Are you able to recognize what's the difference in between these two set? क्या आप पहचान सकते हो इनमें दोनों में अंतर क्या है? Can you see this one? यहाँ पे अगर आप देखेंगे, this is circle and this is square. Here hexagon, rectangle. Similarly, here also some figure, but this figure is known as cube. This one is cylinder. Okay, cuboid. तो इनका नेम डिफरेंट क्यों है? What is the difference between a square and a cube? है क्या इनमें अंतर? How you will be able to differentiate between these two set? कैसे अंतर बताओगे दोनों सेट के अंदर? The basic thing is that when you are going to start such kind of topic, first of all the topic should be clarified in your mind. वो आपके दिमाग में clear होना चाहिए. The picture should be clear. ये है क्या? Otherwise you won't able to attempt any of the question. You will get confused. ये reason यही होता है बच्चों के अंदर. When they just read the statement, they try to solve the problem. They are not able to recognize what they are asking, what they are talking about. कि सम क्या बोल रहा है? क्या वो जानना चाहता है? They just cram up the formula and try to implement कि जिससे आंसर आ जाए, चलो वही लगा देते हैं. नो बेटा, दिस इज नॉट द करेक्ट वे. ये सही तरीका नहीं होता है मैथमेटिक्स का. अगर आप लोग मैथमेटिक्स को अपनी नॉर्मल लाइफ से रिलेट करोगे ना, देन यू विल बी एबल टू कोरिलेट एट द नॉर्मल थिंग्स एंड द सम विद योर रूटीन लाइफ एंड विल एबल टू डू द कैलकुलेशन इन वेल मैनर वे. व्हेन यू रीड द स्टेटमेंट, द पिक्चर शुड बी करेक्ट. अभी जैसे मैंने पढ़ा स्क्वायर, जब भी स्क्वायर आपके माइंड में आए, द पिक्चर शुड बी करेक्टली विजिबल इन योर माइंड. ये आपके माइंड में होनी चाहिए. विजिबल डजंट मीन कि आपके आंखों के सामने आनी चाहिए. एक होता है हमारे मस्तिष्क में विजिबल होता है, हम इमेजिन कर सकते हैं उस चीज को. ओके, दैट शुड बी क्लियर. एंड क्यूब इज देयर. नाउ आपके स्क्वायर और क्यूब दोनों आपका क्लियर होना चाहिए, हाउ इट लुक लाइक. और यू शुड बी एबल टू रिजेंबल विद योर डेली रूटीन लाइक थिंग्स. उनके साथ रिजेंबल करने होने चाहिए. फॉर एग्जाम्पल, मान लीजिए अभी लाइव में आपके सामने खड़ी हूं. ओके, तो इस समय राइट नाउ आई एम अ 3D फिगर. इस समय 3D शेप का काम कर रही हूं. लेकिन अगर मान लीजिए अगर मेरी फोटो लगा दी जाएगी, ऑब्वियसली इन दैट केस आई विल बी 2D शेप. उस केस में एक 2D शेप का काम करूंगी. ओके, सो लेट्स टॉक अबाउट फर्स्ट ऑफ ऑल 2D क्या होता है हमारा, 3D क्या होता है. हम बच्चों को नॉर्मली सिखा देते हैं कि स्क्वायर है बेटा 2D होगा, सर्कल है बेटा 2D होगा. बच्चे कई बार कंफ्यूज होते हैं. ओके, क्लियर हो गया, दे क्रैम अप, उन्होंने लर्न कर लिया कि चलो ठीक है मैम, आपने बोला स्क्वायर है 2D है, पर ये 2D होता क्या है? What is the difference between 2D and 3D? That should be clarified at first. वो आपको क्लियर होना चाहिए. Okay, so basically क्या डिफरेंस होता है? So here the set first one is 2D and the second one is set B is a 3D. So अब ये 2D and 3 में फर्क क्या है? What is the difference? The basic difference is the difference of depth. डेप्थ का अंतर होता है. डेप्थ, फॉर एग्जाम्पल, अगर मान लीजिए मैंने आपके पास एक शू बॉक्स रखा हुआ है. शूज तो सभी खरीदते हैं, एवरीवन लाइक ब्रांड, सब ब्रांडेड शूज लेते हैं. ठीक है, तो आपका जो शू बॉक्स होता है, ओके, तो वो शू बॉक्स बेसिकली 3D माना जाता है बिकॉज उसमें डेप्थ है. दैट्स व्हाई वी आर कैपेबल टू कीप अवर शू इनसाइड द बॉक्स. इसीलिए तो हम उसके अंदर, अपने बॉक्स के अंदर अपने शूज रख पाते हैं. ठीक है, अगर मैं आपसे कहूं कि आपके पास एक छोटा सा बोर्ड है दैट इज इन रेक्टेंगुलर शेप. ओके, अगर मैं कहती हूं कि उसके अंदर अपने जूते संभाल के रखिए, सो इज इट पॉसिबल टू कीप शूज इन दैट? क्या आप वो पेयर ऑफ शूज उसमें रख सकते हैं? नॉट पॉसिबल. व्हाई? बिकॉज देयर इज नो डेप्थ इन रेक्टेंगल. सो दिस इज द बेसिक डिफरेंस इन 2D एंड 3D. जो 2D फिगर होती है, दोज आर नोन एज प्लेन फिगर. वो प्लेन होती हैं. ओके, दे डोंट हैव डेप्थ. उनके अंदर डेप्थ, गहराई नहीं होती है. यू कांट कीप एनीथिंग इनसाइड इट. उसके ऊपर रख सकते हो ऑन द सरफेस बट नॉट इनसाइड इट. ओके, सो दैट इज 2D. 2D, D means dimension. What is dimension? Dimension, we can say a term with the help of which we can visualize that figure. उसको जब देख सकते हैं, जिस तरह से हम लोग उसको देख सकते हैं. एंड ऑल्सो वी कैन से जिससे हम कैलकुलेशन करते हैं. नॉर्मली जैसे रेक्टेंगल के लिए बच्चे बोलते हैं कि व्हाट इज द डायमेंशन ऑफ रेक्टेंगल, सो ऑब्वियसली L and B. What is the dimension of a square? Obviously side is used. What is the dimension of circle? Obviously that is radius or diameter we utilize. If we talk about the 3D, now 3 dimensions are required to be used. इसमें डेप्थ होती है, 3D डायमेंशन होती है. 3 डायमेंशन का इस्तेमाल किया जाता है कैलकुलेशन के समय.
Okay, dear student, I hope this is well clarified to all of you. What is the difference between plain figure and solid figure? Plain figure जो होती है, they don't have depth, whereas solid figure, they do have depth. You can keep something inside it. They occupy some space. उसके अंदर कुछ जगह होती है. That is the basic difference in these two things. So basically आप 10th class में क्या पढ़ते हो? This is the normal level. Okay, normal level conversation, normal level discussion I did right now. 10th में आपका क्या आने वाला है? You will came to know about the surface area. सबसे पहले आप वो सीखोगे कि surface area कैसे निकाला जाता है. Now surface area is also divided into two parts. उसको दो भागों में डिवाइड किया गया. The first one is known as total surface area. The second one is curved surface area or you can say lateral surface area. इन दोनों में भी डिफरेंस है बेटा. कर्व क्या होता है, लेटरल क्या होता है. देखो कर्व तो बाय नेम ही पता लग रहा है, कर्व होना, मोड़ जाना हल्का सा. ओके, दैट इज नोन एज कर्व. कर्व होगा उन फिगर्स के लिए यूटिलाइज होगा जिनके अंदर राउंड शेप जाती है. फॉर एग्जांपल राइट नाउ आई डू हैव दिस वन. ओके, दिस वन विल बी नोन एज द कर्व सरफेस एरिया. ये इसका कर्व माना जाता है. ओके, whereas प्लेन किस केस में होगा, where there will be faces, edges, vertex etc. उस केसेस के अंदर प्लेन मींस उसको लेटरल सरफेस एरिया माना जाएगा. अगर उसके हम लोग सिर्फ आसपास की या उसके राउंड साइड में, या फिर फॉर एग्जांपल अगर मैं बात करूं इसकी, ओके, अगर मैं उसका यहाँ से ऊपर टॉप और ये यहाँ से ये बॉटम है, ओके, इफ आई एम स्किपिंग दिस वन देन दीज फोर, okay, these four that will be known as lateral surface area. और टोटल में क्या होता है, all faces area are calculated all together. ठीक है, सम अप किया जाता है, सभी का सम अप करा. Now each and every formula are related to each and every solid. Okay, they are generated because of some particular reason. हर फॉर्मूले के पीछे एक कारण होता है. इफ यू आर कैपेबल टू नो दैट वन, अगर आप उसको जान पाते हो देन इट विल बी इजी टू क्रैम अप. बच्चों की एक और प्रॉब्लम होती है कि फॉर्मूला याद नहीं होता है. याद होता है तो ये नहीं समझ आता कब वॉल्यूम लगाएं, ठीक है, कब सरफेस एरिया लगाएं, कब कट सरफेस एरिया लगाएं. दिस इज ऑल्सो बेसिक अ प्रॉब्लम. सो डोंट वरी डियर, आई विल ट्राई टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम एंड डेफिनेटली आई विल सॉल्व योर प्रॉब्लम. इस वीडियो के बाद आप लोग इस चीज को सॉल्व करने में पक्के और पक्के सक्षम हो जाओगे. आई एम डैम श्योर, आई प्रॉमिस यू. सो नाउ डियर स्टूडेंट, लेट्स कम टू द नेक्स्ट वन. So here some figures are there. Well, I hope you all have seen this figure. आप सबने ये फिगर देखी होगी, आसपास के एरिया में देखी. और ऑब्वियसली आइसक्रीम कोन, वेरी फैमिलियर, माइन इज ऑल्सो फेवरेट. ये तो मुझे भी बहुत ज्यादा पसंद है. वेल, कप शेप में भी आती है आइसक्रीम, दैट इज फ्रस्टम. वो हमारा फ्रस्टम होता है. ओके, दिस इज कोन. नाउ दीज आर द फिगर्स, ओके, यू कैन एबल टू कोरिलेट विद योर डेली रूटीन लाइफ. एक और रीजन है, नॉर्मली बच्चे कहते हैं कि मैडम ये टॉपिक क्यों पढ़ाया जा रहा है, हम तो घर में कुछ नहीं कैलकुलेट करने वाले. अरे भाई, क्यों नहीं करने वाले आप लोग? ऑफ कोर्स आप लोग करने वाले हो कैलकुलेशन. क्यों नहीं करते हम लोग कैलकुलेशन? फॉर एग्जांपल आप एक आइसक्रीम मैन की ही बात ले लीजिए. आइसक्रीम मैन कितनी आइसक्रीम तैयार करेगा? हाउ ही विल बी एबल टू नो दैट हाउ मच रिक्वायरमेंट ऑफ क्रीम इज देयर ऑन डेली बेसिस? ही विल केम टू नो अबाउट अकॉर्डिंग टू द वॉल्यूम ऑफ द कोन. कोन में कितनी भरी जाती है, कितने स्कूप वो फिल करता है. ऑफ कोर्स ही इज फिलिंग विद स्कूप, तो उससे एस्टिमेशन लगा रहा है. ही इज नॉट कैलकुलेटिंग इन क्यूबिक मीटर, क्यूबिक सेंटीमीटर एक्सेट्रा. ऐसे नहीं कर रहा है, ऑफ कोर्स नहीं कर रहा. आई डू एग्री विद दैट, बट स्टिल उसको वॉल्यूम चेक करने के लिए स्कूपिंग तो ले रहा है ना. दैट्स व्हाई ही वांट टू नो. अदरवाइज वो तो रेंडमली कितना मर्जी कार्ट को भर के क्रीम लेकर के आएगा. whether it could be possible, तो ऐसे करना, no, not at all. So that's why ये कैलकुलेशन की नॉलेज होना बहुत जरूरी है. अदरवाइज वी विल वेस्ट, ओके, मटीरियल. हम लोग वेस्ट करना शुरू कर देंगे. फॉर एग्जाम्पल यू डू हैव लॉट्स ऑफ गिफ्ट. आपके घर में शादी है, आपको बहुत सारी गिफ्ट रैपिंग करनी है, आपने बॉक्सेस का एस्टिमेशन लगाया, तो आप उसके बेसिस पर ही कैलकुलेट करके एक एस्टिमेशन के साथ आप गिफ्ट रैपर पेपर लेकर के आओगे. अदरवाइज ऐसे थोड़ी आप 5-6 बंडल रैंडमली उठा करके लेके आओगे. नो, ऑफ कोर्स. सो दैट्स व्हाई वी शुड केम टू नो अबाउट हाउ मच मटेरियल इज रिक्वायर्ड टू कवर अप दैट बॉक्स. ओके, सो इट इज रिलेटेड टू अवर डेली रूटीन लाइफ. Similarly, for example, you are studying something and you demanded for a glass of water and you are very thirsty. अब बहुत ज़्यादा thirsty हो and your friend is not that much thirsty. वो उतना प्यासा नहीं है. Your mama bring 2 glass of water. One is the smaller one, another one is the bigger one. एक छोटा, एक बड़ा. तो definitely जो thirsty ज़्यादा होगा, he will demand the bigger one. अब भाई उसने बड़ा वाला क्यों डिमांड किया? Obviously उसमें पानी ज़्यादा आता है. ठीक है ना? अब आपको कैसे पता लगा उसमें पानी ज़्यादा आता है? हाउ कुड यू टेल दिस? आप कैसे ही बता सकते हो? अब आप बोलोगे मैडम ये तो आम सी बात है, गिलास देखेंगे पता लग रहा है, अंदाजा लग रहा है. वी आर एबल टू फाइंड आउट, वी आर एबल टू चेक आउट दैट इन विच ग्लास देयर विल बी मैक्सिमम अमाउंट ऑफ वाटर. ऑब्वियसली यू आर. बट यही अगर हम लोग बड़े लेवल पे बात करें,
if bigger tank is there, how you will be able to find out the difference in between these two tank कि किस कंटेनर में ज्यादा पानी आ रहा है. So that's why we should know the volume, how to find out the volume of that solid figure. Okay. So, हमने 2D 3D की बात करी, हमने कोशिश करा कि इनको अपने कोरिलेट कर पाए डेली रूटीन 5 चीजों से. लाइक फॉर एग्जांपल दिस इज बुक, इट्स क्यूबाइड, एंड now dear students, this one is sphere. Okay, this is also clarified. Cone is there, dice is there, that is cube, and this is puzzle. I love this one. I hope you all also love this one. आपको भी पसंद होगा this puzzle game. Actually this is in cube form, and these I hope you all have played with this कंचे we can say. I also, मैं जब आपकी एज की थी मैं बहुत खेली हूँ. These are in sphere shape. Okay, ये sphere shape के अंदर है. So now let's dear come to the next one. Okay, today we are going to learn at first two term. Okay, which is the name of our chapter, title of our chapter, surface area and volume of solid figure. पहले हम इनके बारे में जानते हैं because this should be clarified. अब surface area as I told you earlier, जैसे मैंने आपको बताया surface area क्या होता है. So surface area I told you two types of surface area are there. First one is the curve to total. So total क्या होगा? Total means all faces. All face area will be calculated. All face area will be calculated and sum up, that will be known as total surface area of that solid figure. ठीक है, वो उसका होगा. इसी तरह से हम लोग कर्व की बात करते हैं. फॉर एग्जाम्पल आई डू हैव कोन, ये मेरे पास कोन है इस समय. तो कोन की अगर हम लोग बात करेंगे देन कर्व सरफेस एरिया, एज यू कैन सी देयर इज कर्व. यहाँ आप देख सकते हो, इजी टू रिकॉग्नाइज, बहुत इजी है. सो दिस इज कर्व पार्ट, तो ये कर्व सरफेस एरिया होगा. सो डिफरेंट फॉर्मुलेज आर रिक्वायर्ड टू बी यूज. अलग अलग फॉर्मुले यूज किए जाते हैं हमारे इनके कैलकुलेशन के लिए. सो आई होप दिस इज क्लैरिफाइड दैट सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया क्या होता है, कर्व सरफेस एरिया क्या होता है. And for the different solid figure, different formulas are required to be used. Similarly, let's talk about the volume. अब volume की बात करते हैं. फॉर एग्जाम्पल जैसे मैंने आपको ये दिखाया था, ठीक है. अब अगर मान लीजिए ऊपर का ढक्कन खोल दिया जाए तो ऑब्वियसली इसमें डेप्थ होगी. आई कैन कीप समथिंग एल्स, मैं इसमें कुछ और रख सकती हूँ, मेरा सामान रख सकती हूँ, इवन ये पेन भी रख सकती हूँ मैं. आई कैन कीप इट. तो इसके अंदर जगह बनेगी सामान रखने की. इट मींस देयर इज डेप्थ, इसमें गहराई है जिसमें कुछ रखा जा सकता है. इट इज ऑक्यूपाइंग सम स्पेस. ओके, उसमें कुछ जगह है. सो दैट इज वॉल्यूम. ग्लास ऑफ वाटर है तो उसमें जो वाटर जितना आ रहा है दैट इज द वॉल्यूम ऑफ दैट ग्लास. वो ग्लास की वॉल्यूम होती है वो वाटर. ओके, सो दैट इज नोन एज वॉल्यूम. ओके, सो वी विल लर्न द सरफेस एरिया एंड द volume. And when we find out the surface area and volume of these solid figure, okay, we have to follow the formula. And the formula की जो unit होगी, okay, in case of area, area में जो unit होती है that is square. okay, square unit आती है, whereas हमारे volume में जो figure आती है उसकी जो unit होती है that is cubic. ओके, क्यूबिक के अंदर आती है. क्यूबिक और स्क्वायर में क्या फर्क होता है? लाइक व्हेन यू डू द मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू वैल्यू, आप दो वैल्यू का मल्टीप्लिकेशन करते हो बेटा, सो यू कैन डू वेरी इजीली कि 4 को 3 से मल्टीप्लाई करना है. इट्स वेरी इजी. मैम 20 आ गया, ऑफकोर्स आ गया. अगर उसके साथ मीटर मीटर है तो मीटर मल्टीप्लाई मीटर, इट बिकेम मीटर स्क्वायर. ओके, नॉर्मली मीटर स्क्वायर लिखते हैं, दैट इज नोन एज स्क्वायर मीटर. ओके, सो सिमिलरली क्यूबिक के अंदर हमारे ट्रिपलेट्स हो जाते हैं. ट्रिपल जो हमारी यूनिट होती है दैट गेट मल्टीप्लाइड, 3 बार यूनिट मल्टीप्लाई होती है. दैट्स व्हाई क्यूबिक होता है हमारे पास. ओके, नाउ लेट्स कम टू द डिफरेंट फिगर. अलग अलग फिगर की तरफ आते हैं. ओके, द फर्स्ट वन इज द स्फीयर. आई डू हैव स्फीयर राइट नाउ इन माय हैंड. हियर इट इज. ओके, दिस इज स्फीयर, ब्लू कलर स्फीयर. ओके, सो दिस इज स्फीयर. स्फीयर जो होता है, ओके, बेसिकली क्या होता है? टोटली राउंड फिगर. देखो कहीं से भी प्लेन नहीं होता है, टोटली कर्व शेप में होता है. टोटली. सो इसका टोटल सरफेस एरिया, कर्व सरफेस एरिया, इट रिमेन्स बोथ आर सेम वन. दोनों सेम होते हैं. देयर इज नो डिफरेंस बिटवीन द टोटल सरफेस एरिया एंड द कर्व सरफेस एरिया, क्योंकि इसके अंदर पूरा कर्व ही है तो कर्व ही टोटल रहेगा इसका. सो दिस इज अ राउंड फिगर एंड देयर इज नो फेस. फेस क्या होता है? एक तो प्लेन होता है. देखो फेस ये चीज आती है बेटा, ये देखो यहाँ पर ये पोर्शन होगा, दैट विल बी नोन एज फेस. ये बिल्कुल प्लेन है. ओके, एंड दीज आर नोन एज द एजेस. ये हमारे एजेस होते हैं जो ये वर्टेक्स होते हैं इस तरह से, और ये एजेस होती है, ये हमारी ये लाइंस होती है जो, ठीक है, लाइन जो अगर आप सिंगल सीधी लाइन खींचते हो, ओके, सिंगल लाइन होते हो, दैट इज नोन एज वन डायमेंशनल. और आप जब डॉट लगाते हो, ठीक है, डॉट जो होते हैं दैट इज नोन एज वर्टेक्स. सिंपल पॉइंट्स होते हैं, वो 0 डायमेंशनल के होते हैं. ओके, सो हियर देयर इज नो फेसेस, नो एजेस एंड no vertex. So and what we use to calculate, और इसमें बेसिकली क्या टर्म यूज होती है? Of course radius and diameter.
two terms are there and those are correlated. दोनों आपस में related है. Diameter is equal to 2 multiply radius and radius is equal to diameter upon 2. I hope you are familiar with this one. Okay, आप सबको इसका मालूम है. Now come to the formula. अब यहाँ formula की बात हो रही है. So first one is area. Okay dear. So the first one is the area. Area, and what is the formula of the area is given here. It's so very easy to recognize. ये देखिए, ये area का हमें formula दिया हुआ है 4 multiply pi r square. Now what is pi? Pi जो है हमारी एक mathematic term है. This is used for the calculation purpose. Okay, and basically two values are normally used by us, and that is pi is equal to 3.14 and pi is equal to 22/7. Okay, these are the two terms and two values are used of the pi, and it depends upon you. Okay, ये थोड़ा सा यहाँ दिमाग लगाया करो बेटा, जिससे कैलकुलेशन इजी हो. ऑलवेज यूटिलाइज दैट वैल्यू. बच्चों में ये भी प्रॉब्लम होता है. Still, till it is given in the question that you have to utilize a particular value of pi, you can utilize any one. आप कोई भी एक यूज कर सकते हो. It's up to you. So this is the area formula. Now this will work as a total surface area as well as curved surface area. दोनों के तरीके से आप इसको utilize करोगे. As I told you, there is no difference in between these two. Now next one is the volume. Volume means depth. अब मुझे अगर मालूम करना हो, फॉर एग्जाम्पल इसके अंदर कुछ स्पेस होती, ओके, लाइक दिस इज टोटली फिल्ड राइट नाउ, दिस इज टोटली ऑक्युपाइड. अगर नहीं होता ये ऑक्युपाइड, इसमें स्पेस होती, लाइक नॉर्मली बच्चे जो बॉल से खेलते हैं, प्लास्टिक की होती है, उसमें एयर भरी होती है, उसके अंदर थोड़ा सा छेद कर देते हैं. अगर मान लीजिए एंड वी वांट टू फिल समथिंग, बच्चे करते भी ये पंगे, दे यूज टू फिल सॉइल, सैंड एक्सेट्रा. तो उसके अंदर सो सिमिलरली अगर वो चीज होगा, हमें वो फाइंड आउट करना है हाउ मच सैंड वी कैन फिल इन दैट वन, कितना फिल कर सकते हैं हम लोग. सो वी नीड टू फाइंड आउट दिस वन, वी नीड टू यूज दिस फॉर्मूला, दैट इज 4.3 pi r cube. नाउ देखो, मैंने आपको पहले बताया था, एक चीज मैंने आपको कही थी, क्यूबिक एंड स्क्वायर यूनिट. तो देखिए यहां से क्लियर होता है, देखो यहां पे स्क्वायर यूज हुआ है. सो इट मीन्स आपकी जो यूनिट होगी उस पर स्क्वायर लगा होगा, 2 लगा होगा, बिकॉज योर यूनिट विल बी मल्टीप्लाई 2 टाइम. क्योंकि यहां जब आप मल्टीप्लाई करोगे, ऑफकोर्स 4 मल्टीप्लाई आप पाई की फॉर एग्जाम्पल वैल्यू ये आपने फिल कर दी. फॉर एग्जाम्पल आपका रेडियस मान लीजिए कुछ भी 7 दिया हुआ है, तो 7 मल्टीप्लाई 7, तो ये 7 के साथ क्या है, जो भी आपकी यूनिट है वो यूनिट होगी आपकी. तो आप जिसको नंबर को मल्टीप्लिकेशन करोगे, यूनिट 2 टाइम्स मल्टीप्लाई हो रही है. सो दैट्स व्हाई इट विल बी मीटर स्क्वायर. So this is the difference between the square and the cubic. I hope that is well clarified to all of you, dear all. Okay, and there will be no doubt after this one. Now let's come to the next one figure. Now cylinder. Cylinder. आई आप लोग ने घर में अपने किचन में देखा होगा, किचन में आपने सबने देखा हो रेड कलर के सिलेंडर. कोई एलपीजी एचपी के यूज करता है, कोई इंडियन के यूज करता है. डिफरेंट सिलेंडर्स आर अवेलेबल. आप वहां से इमेजिन कर सकते हो व्हाट इज द एक्चुअल फिगर ऑफ सिलेंडर. वहां से इमेजिन करना बहुत ईजी होता है. आपके घर में वाटर पाइप होती है, आप कनेक्ट करते हो मोटर से, टैंकी वगैरह फिल करते हो, ऑफ कोर्स दैट इज आल्सो अ सिलेंडर. और इसी समय मेरे पास जो ये पेन है राइट नाउ, दिस इज आल्सो इन सिलेंडर फॉर्म. ये भी तो सिलेंडर फॉर्म के अंदर है. सो हियर डियर स्टूडेंट, सिलेंडर इज अ काइंड ऑफ फिगर विच हैज 2 सर्कुलर फेसेस. अब ये 2 सर्कुलर फेसेस क्या होते हैं, देखिए बहुत इजी है डियर, very easy to understand. देखिए यहाँ पर this one is the circular face, you can see this one, okay, circular face. Similarly this one also means this and that, okay, top and bottom 2 circular faces are there. So that is written here. No edges. Edge क्या होता है, सिंपल सिंगल लाइन्स, लाइन सेगमेंट की तरह वो काम करता है. एंड देयर इज नो सच काइंड ऑफ, ये हमारा आर्क है. दिस इज द कॉम्बिनेशन ऑफ आर्क. आर्क आप लोग कंस्ट्रक्शन करते हो, प्रकार से आर्क यूज करते हो, दैट इज नोन एज आर्क. और ये हमारी, हम कहते हैं इन्फिनिटी नंबर ऑफ आर्क आर जॉइंड अप एंड दिस इज द सर्कुलर पार्ट. ओके, सो एंड वर्टेक्स, नो वर्टेक्स वुड बी देयर. कहीं पे आपको दिख रहा है कहीं कोई कोना है, कहीं कोई डॉट है. वर्टेक्स, वेल वर्टेक्स जो होते हैं बेसिकली दीज कम्स बाय द जॉइनिंग ऑफ एजेस. अगर एज ही नहीं है तो वर्टेक्स कहां से होगा, ऑब्वियस सी बात है. सो वेरी इजी टू अंडरस्टैंड. सो बेसिकली क्या ध्यान देना है, 2 सर्कुलर बॉटम एंड दिस. अगर मैं ऐसे कर दूंगी तो ये राइट एंड लेफ्ट का सिस्टम हो जाएगा. ओके, एंड नो एजेस एंड नो वर्टिसेस वुड बी देयर. आई होप दिस इज वेल क्लैरिफाइड टू ऑल ऑफ यू. नाउ कम टू द फॉर्मूला. सो व्हाट इज गिवन इन द फॉर्मूला हियर? ओके, surface area is equal to 2 pi r h plus 2 pi r 2
पाई आर स्क्वायर. सो दिस इज द टोटल सरफेस एरिया. ये आपका बेटा टोटल सरफेस एरिया है. और एक और मैं आपको बात बता दूं, इस पे कर्व सरफेस एरिया भी निकलता है. ओके, दिस इज टोटल सरफेस एरिया. टोटल सरफेस एरिया मींस अब ये कैसे आया है. ओके, सो द फर्स्ट वन 2 पाई आर एच. ओके, दिस वन. ओके, ये जो सर्कुलर है आपका, ओके, दिस इज 2 पाई आर एच. ये आपका ये वाला पार्ट सारा निकल जाएगा इससे. ओके, यू मे एबल टू कैलकुलेट. अगर आप मान लीजिए सिर्फ इसी को रैप करना चाहते हो इसको, तो यू कैन फाइंड आउट द एरिया ऑफ दिस पार्ट और आपको पता लग जाएगा हाउ मच पेपर यू रिक्वायर टू रैप अप दिस पार्ट. ओके, एंड दिस वन 2 पाई आर स्क्वायर. ओके, दिस 2 पाई आर स्क्वायर एक्चुअली ये आपके सर्कुलर है. दिस इज अ काइंड ऑफ सर्कल. तो एक सर्कल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर होता है. ठीक है, तो एक ऊपर का टॉप का पाई आर स्क्वायर लगाया. ओके, सेकेंड वन इज ऑल्सो पाई आर स्क्वायर. दोनों को जोड़ा 2 पाई आर स्क्वायर. तो हमारा आ गया 2 पाई आर स्क्वायर प्लस दिस वन 2 पाई आर एच. नाउ दिस इज टोटल सरफेस एरिया. नेक्स्ट वन इज वॉल्यूम. वॉल्यूम क्या होगा, ऑब्वियसली इसका ढक्कन अगर मैं ओपन करती हूँ, देयर विल बी डेप्थ. I can keep something inside it. So that is pi r square. Again, the pi is the same one thing. Okay, dear student, I hope this is well clarified to all of you. Now, dear, come to the next one. Okay, so the next one is, I have, okay, this one. Well, you all know about birthday cap. सबने बर्थडे कैप पहनी है, कोई बड़ा है छोटा है, सबने पहनी बर्थडे कैप. मैंने भी पहनी है बर्थडे कैप. आई लव टू वियर दैट. ओके, सो दैट इज नॉर्मली इन कोन शेप. वेल, बर्थडे कैप आजकल कुछ और शेप्स में भी अवेलेबल है, बट बेसिकली द मोस्ट कॉमन बर्थडे कैप इज इन कोन शेप. वो कोन शेप में होती है. सो तो कोन बेसिकली होता क्या है, अ कोन हैज वन राउंड फेस एंड बट हैज नो एजेस एंड वर्टेक्स. ओके, अब एक कोन जो होता है बेसिकली, देखिए राउंड, दिस इज द राउंड पार्ट. ओके, आर यू एबल टू रिकॉग्नाइज, दिस इज द राउंड पार्ट. ओके, दिस इज राउंड फेस. अब आप कहोगे कि मैम इसमें ऊपर यहाँ पे टॉप पे एक डॉट आ जाती है, तो आप ये क्यों कहते हो कि इसमें वर्टेक्स क्यों नहीं है. ऑफ कोर्स बेटा, आई टोल्ड यू अर्लियर, मैंने आपसे कहा था कि वर्टेक्स के लिए क्या चाहिए. बेसिकली वर्टेक्स के लिए चाहिए कि हमारे एजेस वहां पर ज्वाइन होते हैं. यहाँ कौन सी एज ज्वाइन हो रही है, कौन सी सीधी लाइन यहाँ पर आ रही है, नो वन, कोई सीधी लाइन यहाँ पे नहीं आ रही है. सो दैट्स व्हाई दिस इज नॉट वर्टेक्स. ये वर्टेक्स नहीं है. ओके, सो हियर नो एजेस एंड नो वर्टेक्स, नो सिंगल लाइन. यस ऑफ कोर्स, बट वन थिंग इज देयर, दैट इज द सर्कुलर पार्ट. जो हमने यहाँ पे सिलेंडर में बात करी थी, सिलेंडर का और इसका ये पार्ट हम लगाएंगे, दैट विल बी द सेम वन. ओके, इसमें 2 पाई आर एच थे. ओके, पाई आर स्क्वायर सॉरी, और इसके अंदर 1 पाई आर स्क्वायर वुड बी देयर. आई होप नाउ यू विल बी एबल टू डिफरेंशिएट इन बिटवीन सिलेंडर एंड कोन. तो उसी के बेसिस पे हमारी कैलकुलेशन होती है एरिया की. ओके, सो लेट्स कम टू द नेक्स्ट वन. ओके, नाउ दीज आर द फॉर्मूलाज. ओके, ये फॉर्मूले होते हैं बेटा. ओके, सो सरफेस एरिया, एरिया इज इक्वल टू पाई आर इन ब्रैकेट आर प्लस अंडर रूट एस स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर. नाउ व्हाट इज दिस, ये होता क्या है basically. Okay, so let me tell you regarding this one what is written here. So here under root h square plus r square is written here. ये h square plus r square होता क्या है, कुछ लोग इसके लिए जगह पे l लिखते हैं. l is slant height. slant height क्या होती है, ये देखो टेढ़ी स्लोपिंग वाली हाइट, ये वाली, ये टेढ़ी वाली होती है. लाइक आप लोगों ने राइट एंगल ट्रायंगल पढ़ा है, हाइपोटेन्यूज पढ़ा है, एक तरह का हाइपोटेन्यूज होता है ये. ठीक है, स्लैंट लाइक ये वाला पार्ट आपका, ये वाला. ओके, दैट इज नोन एज एल. ओके, इसको एल कहते हैं. एंड दिस एल इज इक्वल टू अंडर रूट एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर. नाउ ये एच स्क्वायर आर स्क्वायर क्या होता है, देखिए बेटा, अगर हम इसके अंदर से बीच में से मान लीजिए कोई यहाँ पर थिन मटेरियल या फिर कोई भी सुई वगैरह इसमें डाले, तो ऑफकोर्स वो सीधी यहां तक आएगी, दैट विल वर्क एज हाइट. ओके, वो हाइट होती है सीधी एल्टीट्यूड फॉर्म में, बिल्कुल स्ट्रेट होती है, दैट इज एच. वो एच होता है. आर क्या होता है हमारा, यहाँ देखो यहाँ पे सर्कुलर बेस है, सर्कुलर बेस है तो ऑब्वियसली यहाँ पे रेडियस होगा, दैट इज आर. तो हमारी इस एच जो अंदर एच होती है और आर होती है, इससे कैलकुलेट होता है हमारे एल. एल नॉर्मली सबसे पहले बच्चों को हाइपोटेन्यूज के फॉर्मूले सिखाए जाते हैं. ये क्यों सिखाए जाते हैं, बिकॉज दैट इज रिलेटेड टू दिस वन, वो इसी से रिलेटेड है. द नेक्स्ट वन इज द वॉल्यूम. वॉल्यूम का फॉर्मूला है पाई आर स्क्वायर एच अपॉन 3. सो इसको कई लोग इस तरह से भी लिखते हैं. ओके, दिस इज ऑल्सो अ करेक्ट वे, ये भी करेक्ट है, एक ही चीज है. दीज आर द टू सिमिलर थिंग, दोनों एक ही चीज है बेटा,
बराबर है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच बोलो या पाई आर स्क्वायर एच अपॉन 3 बोलो, दीज आर द बोथ इक्वल थिंग. अगेन व्हाट इज देयर, दिस इज वॉल्यूम. इसके अंदर ऑक्यूपाई होने वाली स्पेस, इसके अंदर अगर ये यहाँ से पूरा खाली होता, व्हाट कुड आई फिल हियर. आप लोग जैसे फॉर एग्जांपल केमिस्ट्री लैब्स में जाते हो, सच काइंड ऑफ मटेरियल अवेलेबल देयर, ग्लासी मटेरियल आर अवेलेबल, जिसमें आप बहुत सारे रिएक्शंस वगैरह करते हो केमिकल्स के, यू केम टू नो अबाउट इट, दोज आर गिवन इन कोन शेप. उसमें आपको बिल्कुल नाप के उसके अंदर आपको केमिकल्स डालने पड़ते हैं एक लिमिट के अंदर, वहां आप वॉल्यूम काम आती है आपकी कि हाउ मच यू रिक्वायर टू फिल इन दैट. ओके, so let's come to the next one. I hope that is well clarified to all of you. Well, this is the easiest one. बहुत easy है ये. Now come to the next one, cubides. Okay, now cubide and cube दो दोस्त हो गए एक तरह से, just like square and rectangle, बिल्कुल उसकी तरह से. Now here is cubide. A cubide is a closed 3D geometrical figure bounded by 6 rectangular plane region. अब 6 से कहने का क्या मतलब है, आप रूम में बैठे हो इस समय, अपनी छत को देखिए, फर्श को देखिए, चारों दीवार देखिए, घूम गए, चेक कर लिया, टोटल कितने हैं, 6 है, कंफर्म. सो दिस इज नाउ हियर डियर 1 2 3 4 5 6 टोटल 6 रेक्टेंगुलर. ओके, सो इनको जब हमने ज्वाइन अप किया, ओके, एंड वी मेक अ 3D फिगर हमने बनाई, ओके, सो दैट बिकम अ क्यूबाइड, और एक वो क्यूबाइड बन गई. नाउ इसके केस के अंदर प्लेन फिगर्स हैं, एजेस भी है, वर्टेक्स भी है, everything is there. Okay, let's talk about that one. Okay, now these are the formula. Okay, उससे पहले मैं आपको ये बता देती हूँ, सबसे पहले इसकी एजेस और वर्टेक्स. वर्टेक्स की बात करिए, आप रूम में अगर बैठे हुए फटाफट कोने देख लीजिए, टोटल यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 वर्टेक्स वुड बी देयर. एजेस मींस these lines are there जहां पे आपके एजेस ज्वाइन हो रहे हैं. सो हाउ मेनी वुड बी देयर, 1 2 3 4, again 4 is under and 4 is here, so 12 edges would be there. Faces की बात करें, 1 2 3 4 5 6 faces would be there. Now dear, these are the formulas. ये हमारे फॉर्मूला है. First one is the formula of total surface area of a cubide. So that is W की जगह पे काफी लोग यहाँ पे breadth का इस्तेमाल करते हैं, so it's okay with that. अगर आप लोग यहाँ पे width नहीं breadth लिखना चाहते हो, it's okay with that. ये आपकी इच्छा है. यहाँ पर हम लोग B भी लिख सकते हैं. width and breadth they seems the same thing. दोनों एक ही चीज होती हैं. No issue with that. You can utilize any of the term, किसी टर्म का यूज कर सकते हो. सो यहाँ पर जब आप कैलकुलेशन करते हो तो all the faces, सभी फेसेस का जो एरिया होता है that can sum up here, वो यहाँ पे सम अप होता है, टोटल होता है, एंड दिस फॉर्मूला डिराइव्ड फ्रॉम हियर. लेकिन अगर आपको कर्व का पता करना है, फॉर एग्जांपल कर्व नहीं होता इसमें लेटरल होता है. कर्व कैसे हो सकता है यार, कॉमन सेंस लगाओ, देखो इधर, this is curve, this is plane, how it could be possible? So lateral will be used by us. So ये difference आप ध्यान में रखिएगा बेटा. So what is the difference between curve and lateral? So अगर हम लोग lateral की बात करते हैं तो these four will be checked by. कई लोग कहते हैं कि मैम हम लोग ये चार क्यों यूज करते हैं, ये छत या दीवार क्यों नहीं यूज करते. नहीं करते बेटा, दिस इज नॉट द करेक्ट वे टू फाइंड आउट. ये नहीं तरीका है हमारा करेक्ट वे. हम जब इसकी बात करते हैं तो ये पूरा राउंड ऐसे सर्कल जाना चाहिए हमारा, इस तरीके से. अगर आप ऐसे करोगे फॉर एग्जांपल, तब आप ऐसे करना चाहोगे तो आपको ये और ये मींस बॉटम भी आपको इंक्लूड करना होगा. 360 का पूरा एंगल जाना चाहिए आप लोगों का. दिस इज द बेसिक रीजन. द नेक्स्ट वन इज द वॉल्यूम, वेरी इजीएस्ट वन. कई लोग इसको लिखते हैं वॉल्यूम L into B into H. Here I have written L into B into W. L denotes to length, H height, W is width. That is equal and similar to breadth. Okay, you can find out इसमें क्या क्या आ सकता है, आप लोग पता कर सकते हो. How much volume would be there? अगर शूज बड़ा है छोटा है उसके अकॉर्डिंगली ही शूज का बॉक्स तैयार होता है, ऐसे नहीं होता है तैयार. Okay, I hope this is clarified to all of you. Dear all, let's come to the next one. Okay, now the next one is that cube. क्यूब तो हर कोई जानता है, डाइस से हर कोई खेलता है, पजल से हर कोई खेलता है. एवरीवन लाइक पजल बॉक्स. ओके, पजल गेम, एवरीवन लाइक प्लेइंग लूडो, स्नेक लैडर. ओके, सो हियर इट इज, ये क्यूब है हमारा. वेल, क्यूब की सबसे अच्छी खास बात होती है कोई चक्कर ही नहीं है लेंथ ब्रेथ और हाइट का, सब इक्वल, एक समान. यहां से दिखाई देती है इक्वालिटी. हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है इक्वालिटी. ये इक्वालिटी मुझे यहां नजर आती है क्यूब के अंदर, ये करेक्ट सिंबल है इक्वालिटी का. सो हियर इट इज. सो यहाँ पे क्यूब एक ऐसी चीज है जहां पे हमारे 6 फेसेस होते हैं एंड ऑल आर इन स्क्वायर फॉर्म. स्क्वायर में क्यों होते हैं, स्क्वायर में इसलिए होते हैं बेटा, इसकी L, B और H
तीनों इक्वल होती है, सो दैट्स वाई हम लोग यहाँ पे उसको साइड भी बोल सकते हैं, ठीक है। कई बार उसको ए से भी डिनोट किया जाता है, सो दैट्स वाई वी कैन से इक्वल 6 स्क्वायर्स आर देयर, उसकी क्लोज फिगर होती है, ओके, 3D शेप में होती है, डेप्थ होती है, ऑक्युपाइज सम स्पेस इनसाइड इट, टोटल सरफेस एरिया इज 6 मल्टीप्लाई L into L, or you can say 6, just a minute dear all, let me use this one, okay, one more thing, you can say 6L square, okay, L square, okay, 6 multiply L की वैल्यू फिल करोगे, multiply L की वैल्यू फिल करोगे, again the multiplication of the unit would be there and there will be a square on the unit, so that's why the answer will be in square unit. Similarly, the volume is there in which you require to multiply 3 times the side, okay, triple 3 times, that's why we will get cubic unit, हमें cubic unit मिलेगी. I hope this is clarified and you are very much familiar this one. Okay, let's come to the next one. One more figure is there, okay, ये figure आपकी 10th में आती है. ये figure कौन सी होती है? फ्रस्टम, एग्जैक्टली फ्रस्टम, घर में बकेट रखी हुई है, फ्रस्टम के शेप में है. आइसक्रीम का एक और मिलता है बेटा आप लोगों को, अगर आपने खाया हो कप, आई लव टू ईट इट. कई लोग कोन खाते हैं, कई लोग कप खाते हैं, ओके. सो लेट मी टेल यू दिस फिगर, ओके. आई होप सबने ये वाला कप आइसक्रीम का खाया होगा, मैंने भी खाया है, सबने खाया ऑफ कोर्स, आई लव टू. दिस इज फ्रस्टम. अब ये फ्रस्टम कहां से जन्म लिया है? इस फ्रस्टम ने, अरे भाई कौन से लिया है और कहां से लिया है? इसकी टोपी को काट दो, ओके, लाइक दिस इज द कोन. अगर मैं इस कोन में से इतना हिस्सा काट दूंगी तो ये बचेगा क्या? ऑब्वियसली फ्रस्टम बचेगा. Okay, so we will come to know about this one figure also. This is also an important figure given in your mathematics, especially in class 10th. Okay, now the next one thing what we will learn in the later on videos, like we will learn about the calculation. अभी ये just introductory part था. I just wish to tell you about the different figure, what are the specially, how to recognize and how to learn the formula as well. फॉर्मूला लर्न करने में ये आपको बहुत इजी रहेगा, बिकॉज नाउ यू विल बी एबल टू कोरिलेट दीज थिंग्स, ओके. आप इनको आपस में कोरिलेट कर पाओगे आपके नॉर्मल रूटीन लाइफ के साथ, ओके डियर. सो व्हाट वी केम टू नो, फर्स्ट ऑफ ऑल सरफेस एरिया हमने जाना क्या था, देन वी केम टू नो अबाउट द वॉल्यूम, देन वी केम टू नो अबाउट द formulas of almost each and every figure. Yes, except frustum. Don't worry, I'll join you later on once again while telling you regarding the frustum formula. वो भी आपसे जरूर मैं आपसे डिस्कस करूंगी. Don't worry. You all are required to practice your sum with the help of these formula at home. 10th क्लास में हम लोग बेसिकली इन सिंगल फिगर के बारे में जानेंगे. अगर दो फिगर मैंने ज्वाइन कर दी लाइक दिस, ओके, तो इनका इकट्ठे कैसे निकाला जाए सरफेस एरिया, वॉल्यूम कैसे निकाला जाए, ये भी हम लोग जानेंगे. लॉट्स ऑफ थिंग्स आर पेंडिंग टू बी लर्न डियर ऑल. आई विल बी बैक इन द नेक्स्ट वन वीडियो डियर ऑल. टिल kindly keep learning, keep listening your own Parmar Academy. Thank you so much dear all students.